गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 23 कर रहे थे, रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आज का टॉपिक है पब्लिक हेल्थ। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, कैरिंग आउट एंड मॉनिटरिंग स्कीम टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. It gets financial and technical help from the central government. Usually, local self-government bodies and NGOs are actively involved in efforts to improve public health. स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से प्लान करना है, मॉनिटर करना है और पब्लिक हेल्थ की जो स्कीम्स हैं उन्हें किस तरह से इम्प्रूव करना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है और जो भी फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद की ज़रूरत होती है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। ज़्यादातर ये जो काम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर एनजीओज देखते हैं ताकि वो पब्लिक हेल्थ की जो इम्प्रूवमेंट कर सकें और लोगों तक हर इलाज पहुंचा सकें। The state government runs hospital and health center in urban and rural areas of the state to provide medical treatment to the public at reasonable cost. These are run mostly out of taxes paid by the public. The state government arranges for sanitation and waste management. It also organizes different kind of health camp in the state to vaccine people against diseases, to conduct free medical tests, to spread awareness about health and so on. स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सारे हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर भी खुलवाती है दोनों एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल एरियाज़ में भी जो भी स्टेट में हैं, ताकि हर इंसान को मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके और उसकी कॉस्ट है वो भी कम से कम हो ताकि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। ज़्यादातर ये चीज़ें कैसे चलती हैं, जो भी पब्लिक टैक्स पे करती है उसके थ्रू ये चीज़ें चलाई जाती हैं। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ये भी ध्यान रखती है कि जो भी मेडिकल वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट किस तरह की जाए और ये बहुत सारे कैंप्स भी ऑर्गेनाइज कराती है जहाँ पर जो लोग डिजीज़ हैं, जिन्हें कोई बीमारी है, उनकी इलाज हो सके और फ्री मेडिकल टेस्ट हो सकें, लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाई जाए, उन्हें जागरूक किया जाए हेल्थ के बारे में। और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करती है। The state government is responsible for giving health information to people, especially in the local languages. It employs health workers to do work among the people and tell the people how disease can be prevented and treated. The government also gives such information through advertisement. The state government set up and run various institutions to train pharmacists, nurses and other type of health workers. स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे हेल्थ के बारे में और स्पेशली उनकी लोकल लैंग्वेज में ताकि उन्हें वो समझ आए। काफ़ी सारे वर्कर्स जो हैं एम्प्लॉय काम करते हैं किस चीज़ के लिए, कि लोगों को समझाया जाए कि किस तरह की डिजीज़ को, किस तरह की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एड्स के थ्रू भी देती है। उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोले हैं स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ पर नर्सेस को, फार्मासिस्ट को, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। The health service provided by the state government reach us through a chain of health centers. At the village level, there is usually a small health center where minor illness can be treated. The village health center is under the supervision of a primary health center, that is PHC. A PHC supervises the health center of the several villages. PHCs have qualified doctors. They refer seriously ill patients to bigger health centers such as a district hospital where specialized facilities for testing and treatment are available. Cities usually have large government hospitals where all kind of illness, minor and major, can be treated. The public health services are cheap, but they suffer from a shortage of medicine, medical equipment, hospital beds, qualified doctors and trained health workers. Patients often complain of unsympathetic doctors and health workers and sometimes of discrimination against women and Dalits. अब ये जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं ये एक चेन के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि विलेज लेवल पे क्या होता है, एक छोटा सा हेल्थ सेंटर बनाया जाता है जहाँ पे छोटी मोटी बीमारी का इलाज किया जाता है। अब ये छोटे छोटे हेल्थ सेंटर को सुपरवाइज करने के लिए एक पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जो कि इन सब की देखरेख करता है। पीएचसी में हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं और जितने भी सीरियसली इल पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उन्हें उनसे भी बिगर हेल्थ सेंटर्स में पहुंचाया जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, जहां पर और भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं और फैसिलिटीज़ होती हैं टेस्ट करने के लिए और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है।
सिटीज़ में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर माइनर और मेजर दोनों यानी कि छोटे और बड़े दोनों बीमारियों का इलाज किया जाता है। जितने भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो बहुत चीप होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन वहाँ पर मेडिसिन की बहुत कमी होती है, दवाइयों की कमी होती है, इक्विपमेंट्स की कमी होती है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होते हैं, जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो कई बार पेशेंट जो हैं ये कंप्लेन भी करते हैं कि वहाँ के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रूड होते हैं उनके साथ, और उनमें भेदभाव भी किया जाता है, जैसे कि वुमेन्स और दलित्स में वहाँ पर भेदभाव भी किया जाता है। नेक्स्ट इज beside public health services, various private health services are also available. Many doctors run their own clinics. There are also many privately run hospitals and nursing homes. The private health services are good but are found mostly in cities. Besides, they are run to earn profit and therefore very costly. To increase profit, the doctor at private health center often prescribe more tests and medicine than are actually required. They also prefer to use expensive method of treatment even when cheaper methods are available. इसके अलावा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अलावा बहुत सारी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपने खुद के क्लिनिक्स चलाते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, बहुत सारे नर्सिंग होम भी हैं प्राइवेट जो कि लोग अपने चलाते हैं। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर सिटीज़ में यानी कि शहरों में ही पाई जाती हैं, और ये जो जितने भी सर्विसेज हैं ये सारी सर्विसेज बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि इनका मोटिव जो होता है ये प्रॉफिट कमाना होता है, और प्रॉफिट कमाने के लिए कई बार जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं या प्राइवेट हेल्थ सेंटर जो होते हैं ये ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, और वो बहुत सारे एक्सपेंसिव मेथड यानी कि जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है वो मेथड से ट्रीटमेंट करते हैं, हालांकि जब हम एक सस्ते मेथड से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। India has a large number of doctor and health centers. Some of our hospitals have facilities that are among the best in the world. Many people visit India as medical tourists to get treatment. India is also a leading producer of medicine. In spite of all this, a large number of people die here from preventable causes. Often, people cannot get timely medical help as they have to travel long distance to reach a health center. Many cannot bear the cost of treatment. The steps taken to stop the spread of infectious diseases are not enough. Many Indians still do not get clean water to drink and enough food to eat, so there is still a lot that the government can do in the field of public health. इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे हेल्थ सेंटर हैं, बहुत सी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ दुनिया में सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ मानी गई हैं। बहुत सारे विजिटर्स टूरिस्ट ऐसे हैं जो इंडिया में अपने इलाज करवाने आते हैं। इंडिया मेडिसिन के मामले में भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा मेडिसिन इंडिया में प्रोड्यूस की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इंडिया में बिना इलाज के मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें टाइमली मेडिकल हेल्प नहीं मिलती, उन्हें टाइमली इलाज नहीं मिलता, या अगर उन्हें टाइमली इलाज मिले तो वो उसका ट्रीटमेंट जो है उसकी कॉस्ट बियर नहीं कर सकते, या फिर उन्हें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, बहुत लंबा सफ़र तय करके फिर उन्हें हेल्थ सेंटर तक पहुंचाया जाता है, इतने में उनकी डेथ हो जाती है। इसके लिए इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, डिसीज़ेज़ को रोकने के लिए भी कुछ अच्छे स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो कि गंदा ही पानी पीते हैं और अच्छा खाना नहीं खाते, इसलिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को ठीक करनी है पब्लिक हेल्थ के मामले में। The government of Kerala has succeeded in improving public health remarkably by providing health services through Panchayat. The Panchayat, being more aware of the specific need of the villages, have been able to plan and carry out schemes for providing water, sanitation, medicine, health information, etc. as required. जो केरला की गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई है सारी गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने अपने पब्लिक हेल्थ के को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। किसके द्वारा? पंचायत के द्वारा ही। वहाँ पर जो पंचायत है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर है कि गांव वाला की क्या नीड्स हैं, उन्हें टाइमली मेडिसिन मिले, उन्हें टाइमली हेल्थ इन्फॉर्मेशन दी जाए, पानी दिया जाए और सैनिटेशन प्रोवाइड की जाए। The government could also try to spend more of its fund on public health. An example of this was set by the Central American country Costa Rica. This country's government abolished army in 1948. Thereafter, the money that would have been spent on the army was spent on health,
education, etc. This significantly improved the Costa Rican people's welfare. गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है, फंड है, वो पब्लिक हेल्थ में लगाना चाहिए. इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जिसका नाम कोस्टा रिका है, उसने 1948 में अपने देश में से आर्मी को हटा दिया था और ज़ारा का सारा पैसा जो कि आर्मी में यूज़ होता था वो किस पे लगा दिया, हेल्थ और एजुकेशन पे, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं, कोस्टा रिकन पीपल हैं, उनके वेलफेयर की इम्प्रूवमेंट हो सकी. Thank you student, your chapter is over. Hope you understand it very well.